starting with the first chapter of accountancy, that is introduction to partnership. Now in 11th standard you have studied the examples, or we can say bookkeeping of sole proprietorship. Sole proprietor means only one person is the owner of business, okay, and he is only enjoying the profit of the business. But here in 12th standard you will be introduced to partnership and the accounting of partnership. So what is the first question arises, what is partnership? So partnership can be divided into two words. First is partner and another one is ship. Now what is partner? Partner means we can say part owner. Part owner means the person who is not fully responsible for the business, or he will not be fully enjoying the profit of the business or share of profit, but he will divide the profit or he will be sharing with the other persons who are also involved in the business. So he can be said to be a part owner of business or co-owner of business. And ship here means relationship between whom? Between these partners. ठीक है, इन रिलेशन पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है रिलेटेड टू बिजनेस, तो वो होती है, उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप. नाउ विल सी द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. रिमेंबर दिस ईयर एंड द पार्टनर नेम ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट because it is important for objective purpose. So this act defines partnership as, partnership is the relation, it is the relation between whom? Between the persons who have agreed to share profit of business. ठीक है, जो एग्री करते हैं, जो संबंध है प्रॉफिट जो भी होगा बिजनेस का उसे आपस में शेयर करने के लिए. कैरिड ऑन बाय ऑल मीन्स सभी मिलके एक साथ चलाएंगे, सभी एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो फिर उसमें से किसी एक को चूज करेंगे जो एक्टिवली पार्ट लेगा जो बिजनेस एक्टिविटीज होगी उसमें, और देन ही विल वर्क फॉर द अदर पर्सन्स इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर profit of business carried on by all or any one of them acting for all. Now the persons who are involved in partnership, they are individually known as partners and collectively known as firm, partnership firm. Now another point is, what are the different characteristics of partnership? So first characteristic is creation by contract. ठीक है, जब भी आप पार्टनरशिप में एंटर होते हो देन यू हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिफरेंट प्रोविजंस होंगे, ठीक है, कंडीशंस होंगी जिसे यू हैव टू एग्री एंड फॉलो. सो एंड इट इज़ डिजायरेबल दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो, सो यू कैन शो देम दैट देखो ऐसे लिखा हुआ था इसमें और तुम कुछ और बोल रहे हो. ठीक है, सो इट शुड बी डिजायरेबल दैट प्रिफर अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. जैसे हमने पढ़ा कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर का हो, चाहे कंपनी का हो, द ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू मेक और टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, सो पार्टनरशिप, द कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव मीन्स टू मेक प्रॉफिट. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लीगल बिजनेस, means you should be involved, you should be engaged in legal business only. Illegal business are not covered under this provision or act. ठीक है, मीन्स आप जैसे अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पे ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, वाइन्स और ये सब अलाउड नहीं है, तो आप उसका बिजनेस यहाँ नहीं कर सकते ओपनली. ठीक है, ये स्मगलिंग का बिजनेस आप नहीं कर सकते हो. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इलीगल. So you should be engaged in legal business only. Then next characteristic is agent of each other. Now all the partners are agent of each other. Means the business of partnership is run by all partners or any of them for all or more than one partner. So we can say that
दे आर एजेंट ऑफ ईच अदर, या तो सभी काम करेंगे या फिर कोई एक अपॉइंट किया होगा जो बाकी के लिए काम करेगा या फिर एक से ज़्यादा काम करेंगे. सो दे आर सेड टू बी द एजेंट फॉर ईच अदर. देन नेक्स्ट इज number of partners. Now under section 464 of Companies Act 2013, the maximum number of persons are 100, which are mentioned by the government. And under rules 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014, it is maximum of 50. So remember this number of partners, it is important for objective. The next characteristic is unlimited liability. This point you have also studied in 11th standard, that the liability of, in case of sole proprietor and partnership both, it is unlimited. Means अगर आपका business बंद हो रहा है, ठीक है, you are closing down your business because you are making losses, so you have to also sell your personal property to repay your debt. So in that case we can say that there is a unlimited liability in case of partnership. Then next is ownership and management of the business. Now partners are owners of business, ठीक है, यहाँ पे सारे partners owners कहे जाएंगे and they do the management of the business. सो यहाँ पे जैसे उन्होंने डिसाइड किया होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि सभी पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्ट लेंगे या फिर कोई एक पार्ट लेगा बाकी सबके लिए. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑल द पार्टनर्स आर ओनर्स एंड सम विल बी टेकिंग एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑल्सो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप डीड. नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट द पार्टनर्स हु आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट at the time of commencement of partnership, so that is partnership deed. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन पार्टनर्स, सो दे कैन प्रेजेंट दिस डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वैसे इट इज़ कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, आप जब भी चाहो उसमें जो भी प्रोविजंस है उसे यूज़ कर सकते हो एज अ प्रूफ. एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस सेंटेंस, दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड इट इज़ एडवाइजेबल दैट इट शुड बी रिटन. ठीक है, रिटन में आप करो तो एडवाइजेबल है, ओरली होगा तो यू कैन नॉट प्रेजेंट इट एज अ प्रूफ और एज एन एविडेंस. ठीक है, तो इट शुड बी एडवाइजेबल दैट इट शुड बी इन रिटन फॉर्म. And as we have discussed, it is administrative constitution of partnership. Now what are the details which are included in partnership deed? Partnership deed में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं और क्या मेंशन हमें करना चाहिए? So first is detail of firm. Sorry, first point is detail of partners. So आप जो भी पार्टनर्स पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स, उनके नाम, उनके एड्रेस, everything should be mentioned in partnership deed. In the same way detail of firm. ठीक है, फर्म का जो नाम एड्रेस है वो सब कुछ उसमें आपको मेंशन करना है, डिटेल्स रिगार्डिंग फर्म. देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बिजनेस. किस तरह का बिजनेस में आप डील करने वाले हो. ठीक है, किस तरह की प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो किस तरह की प्रोडक्ट में प्रोडक्शन कर रहे हो, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. तो ऑल दोज पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डील. Then next is commencement of partnership. Okay, the date on which you have started your partnership business, it should be mentioned in partnership deed. Then next is capital. Okay, how much capital will be introduced in the partnership and कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है. ठीक है, that share of capital of each partner should also be mentioned in the partnership deed. देन अब नेचुरली वो कैपिटल लेके आ रहा है तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो दैट प्रोविजन ऑल्सो शुड बी मेड इन द पार्टनरशिप डीड. क्लियर? सो कितना इंटरेस्ट पे करना है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल. क्लियर? सो इट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड दैट हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेएबल टू द पार्टनर्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मच अमाउंट अ पार्टनर कैन विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, मीन्स ड्रॉइंग्स. ठीक है, कितना विड्रॉ कर सकता है एक साल में या एक मंथ में, वो सब कुछ आपको मेंशन करना है, मैक्सिमम अमाउंट. अब अगर वो विड्रॉ कर रहा है
तो इंटरेस्ट उस पर पेएबल होगा. So at what percentage interest on drawing will be payable by the partner, that should be also mentioned in the partnership deed. Then next point is distribution of profit and loss. ठीक है, बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो आप वो किस शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो क्या है आपका, दैट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. Now in partnership act there is no provision regarding salary, bonus or commission to the partners. So if a partner is taking active part in the partnership business, then how much salary or bonus or commission will be payable to him or her, that should be mentioned in the partnership deed. The next point is interest on loan. Now this the percentage of interest on loan should be mentioned, and if no provision is made, then at the rate 6% per annum interest will be payable to the partner on loan. The next point is goodwill. ठीक है, share of goodwill of each partner should be mentioned in the partnership deed. Then what are the provision of admission of partner and retirement of partner? These points should also be included in the partnership deed. ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम उसको किस तरह से रिटायर किया जाएगा, ठीक है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द फर्म शुड बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, सो द सिचुएशन, द सर्कमस्टेंसेस शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. So these are the points which are included in partnership deed.